Hello students, welcome to the new chapter of physical chemistry, ionic equilibria. This chapter is in continuation of chemical equilibrium. But before starting this chapter, let's talk about electrolytes, and electrolytes se discuss karte karte we'll come to the definition of ionic equilibrium. Now, if you talk about electrolytes, so electrolytes are those type of conducting material which conduct electricity due to flow of ions. Okay? तो कंडक्टिंग मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर लाइक मेटल्स, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की. वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, which conduct electricity due to flow of ions in molten, also called as fused state, or in aqueous state. मतलब जिसको अपने वाटर में डिसॉल्व किया. हम aqueous मीडिया इज काइंड ऑफ अ पोलार, इट्स अ पोलार मीडिया. और हम लोग वाटर को क्यों सिलेक्ट करते हैं? एक्वस मतलब वाटर हो गया, ये क्यों सिलेक्ट करते हैं? Because water has a dielectric constant of 80, very high. Dielectric constant is the ability of solvent to separate the charges. Okay, तो आयंस बनेंगे तो कंडक्टिविटी होगी. सो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मीडियम वाटर लेके ही चलते हैं. Because there can be other polar media like ammonia, like alcohol. These are polar media, but इनकी polarity वाटर से कम होती है. Okay, so electrolytic conductors are those conductors which conduct electricity due to flow of ions in molten or fused state or in aqueous state. Okay, molten or fused state, for example NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसका नेचुरल स्टेट सॉलिड है. सॉलिड स्टेट के अंदर NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज Na+Cl- आयंस विच आर ऑलरेडी देयर इन द लैटिस ऑफ NaCl डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो NaCl को कंडक्शन में कैसा डालोगे? तो दो ही तरीका है. आप NaCl को हीट करो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. यू टेक प्योर NaCl in a container, heat it at a very high temperature. So what will happen? It will melt. When it will melt, the bond between Na+Cl- will break because of thermal energy. और उस केस में आयंस को हम लोग मूव करा सकते हैं at the opposite electrodes, which you have seen in electrolysis process in your 11th standard के and 10th standard के explanation में electrolysis में. और what do? You simple add NaCl to water. When you add NaCl to water, you stir it. Because of the friction, you get some energy, heat energy. And second point, water is polar media, very high dielectric constant. So what it will do? It will separate those Na plus and Cl- into constituent ions. This process of separation of ions is called as dissociation or ionization. हालांकि ionization और dissociation दो अलग terms होते हैं, लेकिन हम लोग ये मान के चलते कि दोनों का एंड रिजल्ट सेम है एंड इन द एंड यू विल गेट आयंस. देयरफॉर वी से कि व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर इट डिसोसिएट टू फॉर्म्स कटायन एंड अनायन व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन द एक्वस स्टेट और इन द मोल्टन स्टेट में. इलेक्ट्रोलाइट्स के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं. नाउ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम लोग आयंस के बारे में बात करें विच प्रोड्यूस आयंस, तो आयंस कौन प्रोड्यूस करता है? आयंस कैन बी प्रोड्यूस, acid can produce ions, base can produce ions, salt can produce ions. Okay, अब आयंस की क्वांटिटी पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफरेंशिएट करो आप. कैसे? अगर कोई सब्सटेंस, कोई इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आपने जितना भी सब्सटेंस ऐड किया है, लिया है, इट इज कंप्लीटली गेटिंग डिसोसिएटेड इनटू आयंस. दोज substances are called as strong electrolytes. Okay, and those produce less ions are called as weak electrolytes. So aqueous media में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स को, मैंने मीडियम कौन सा चूज किया है देख लो, एक्वस. मीडियम चेंज करने से डिसोसिएशन पे फर्क पड़ जाता है. हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड weak electrolyte. Strong electrolyte which dissociate almost completely in aqueous media. Weak electrolyte is less
डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, मतलब लेस सेपरेशन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ सकते हैं? दे कैन बी स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HClO4, परक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल ये लेके चल रहे हैं हमारे सिविल्स के लिए, वरना हमारे पास हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड्स भी होते हैं। तो HClO4 लिया है, परक्लोरिक एसिड हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HI, HBr, HCl, HNO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इनको छोड़ के बाकी आपको कोई भी एसिड दिखेगा ना तो एक्वस मीडिया में नॉर्मली वो वीक होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सीजियम हाइड्रोक्साइड, देन रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, potassium hydroxide, sodium hydroxide, then you have a barium hydroxide, strontium hydroxide, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आ गए। इनको छोड़ के आपको जो बेसिस दिखेंगे ना वो नॉर्मली वीक होते हैं एक्विस मीडिया में। सॉल्ट्स तो सारे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। दो सॉल्ट्स के बारे में मैंने पढ़ा था, एक था कैडमियम ब्रोमाइड और एक था HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड। इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑल सॉल्ट्स आर नॉर्मली स्ट्रॉन्ग। ओके, मतलब अगर ये डिसॉल्व हुए तो ये पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे, याद रखने का। इफ दे गेटिंग डिसॉल्व दे गेट डिसोसिएट कंप्लीटली। सॉल्ट को आप दो कैटेगरी में डाल सकते हो, स्ट्रेंथ की कैटेगरी में नहीं, डिसोल्यूशन की कैटेगरी में। देखो, अगर सॉल्ट डिसॉल्व हुआ तो वो आयंस बनाएगा पूरा, लेकिन सॉल्ट डिसॉल्व होने के लिए दो टाइप होता है। एक होता है कंप्लीटली soluble salt in water और एक होता है sparingly soluble salt। मतलब इनका डिसोल्यूशन बहुत हाई है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, अगर आपने ये सब सारे सॉल्ट लिए हैं, वाटर में ऐड किया, स्टर किया, वो डिसॉल्व हो जाएंगे पूरे, आपको उसके सॉलिड पार्टिकल्स बॉटम पे नहीं मिलेंगे। तो दैट आर कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, और अगर वो डिसॉल्व हुए तो पूरे के पूरे आयंस बनाएंगे। और एक होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट डिसोल्यूशन इज लेस। फॉर एग्जाम्पल AgCl लिया मैंने, सिल्वर क्लोराइड हो गया, ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। मतलब अगर मैं इसको वाटर में डाल रहा हूँ तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए। हमने AgCl वाटर में लिया है, बट दैट AgCl डिसोसिएट्स। AgCl समझो, एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 ग्राम लिया, तो आउट ऑफ दैट 1 ग्राम सपोज 0.2 ग्राम डिसॉल्व हो गया वाटर में, 0.8 ग्राम डिसॉल्व नहीं हुआ। तो एट दैट सेम टेम्परेचर वो अनडिसॉल्व ही रहेगा 0.8 ग्राम, और 0.2 ग्राम ही डिसॉल्व होगा। तो अब उस टाइप के, अच्छा, जो 0.2 ग्राम डिसॉल्व हुआ है दैट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, वो पूरा के पूरा आयंस बनाएगा ही बनाएगा। बट 0.8 ग्राम अनडिसॉल्व है, तो उसको हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। अगर आपने NaCl लिया तो NaCl क्या होता है, उसको वाटर में डाला 1 ग्राम, वो पूरा 1 ग्राम डिसॉल्व हो गया और पूरा 1 ग्राम डिसोसिएट हो गया, बनेगा Na+NCl-, तो वो होता है कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। बट दोनों में एक समझना जरूरी है कि वन इज डिसॉल्विंग कंप्लीटली इन वाटर, वन इज डिसॉल्विंग टू अ लेस एक्सटेंट इन वाटर। लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज क्या है कि जितना भी डिसॉल्व हुआ वो पूरा आयंस बनाएगा। इन केस ऑफ AgCl 0.2 is getting dissolved, so that 0.2 will make ions. In case of NaCl 1 gram is getting dissolved, so that 1 gram will make ions. तो जितना डिसॉल्व होगा उतना आयंस बनाएगा। लेकिन वीक एसिड, वीक बेस, इनका क्या फंडा है, वीक एसिड और वीक बेस का, कि ये डिसॉल्व होने के बाद भी पूरे आयोनाइज नहीं होते। वीक एसिड लाइक ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, एक्सेप्ट हम लोग सल्फोनिक एसिड को छोड़ सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड इन ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सब वीक एसिड्स होते हैं। ओके, इनके डिसोसिएशन पानी में कंप्लीटली नहीं होंगे। उसके बाद में अच्छा, वीक एसिड में इनऑर्गेनिक एसिड्स भी आते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड आ गया, फिर H3PO4 आ गया, ये सारे के सारे वीक एसिड्स है। वीक बेस कौन से हो गए, ऑल ऑर्गेनिक बेसिस लाइक अमाइंस, ठीक है, ये सब वीक बेस होते हैं। जितने भी आपको अमाइंस दिखेगा, पिरिडीन दिखेगा, पाइपिरिडीन दिखेगा, पिरिडीन आपको याद होगा C5H5N मैंने डाला था, C5H5N, ये सब भी ऑर्गेनिक है।
तो दीज ऑर्गेनिक बेसिस आर वीक बेसिस। अब ये बेसिस कोई भी हो गया, ये वीक है ऑर्गेनिक में, मतलब इन 6 को छोड़ के बाकी आपको जितने भी बेसिस दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब वीक बेस है, ठीक है। तो दीज आर वीक ऑर्गेनिक बेसिस। इसमें इनऑर्गेनिक बेसिस भी आ सकते हैं, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लाइक FeOH थ्राइस, ये सब वीक बेसिस की कैटेगरी में आएंगे, ओके। इनऑर्गेनिक बेसिस, कॉपर हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑल डी ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो वीक में आते हैं। तो वीक एसिड और वीक बेस का फंडा क्या है और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का फंडा क्या है, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, यहां से HCl। HCl को मैंने एक्वस मीडिया में डाल दिया, तो HCl इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली to give H plus ions in aqueous media and Cl minus ions in aqueous media. That is why इसको मैंने एक ही सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया है। दिस एरो इज इरिवर्सिबल एरो। बट अगर वही एसिटिक एसिड CH3COH ऑर्गेनिक एसिड को मैं एक्वस मीडिया में ले रहा हूं, एक्वस मीडिया, सो व्हाट विल हैपन, इट विल डिसोसिएट फीबली, लेस एक्सटेंट। मतलब अगर सपोज मैंने इसमें से 1 मोल लिया है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये भी 1 मोल लिया था, तो ये 1 मोल में से 99% डिसोसिएट हो जाएगा, समझो 95% खुद से डिसोसिएट हो गया इन एक्वस मीडिया, बाकी का वाटर इसको डिसोसिएट कर देगा, मतलब पूरा 1 मोल डिसोसिएट हो गया। बट एसिडिक एसिड सपोज 1 मोल लिया है, इमेजिन करो सपोज, तो उसमें से सपोज 0.2 मोल डिसोसिएट हुआ, तो यू गेट CH3COO माइनस एक्वस मीडिया प्लस H प्लस इन एक्वस मीडिया, डिसोसिएट हुआ, कितना बनेगा ये 0.2, तो ये कितना रिमेनिंग हो जाएगा 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8 मोल। तो ये इतना रिमेनिंग है और इतना डिसोसिएट हुआ, ठीक है, एक्वस मीडिया में। इसने आपने इसको ओपन किया है, हाँ, तो जब 0.2 ओपन करोगे तो 0.2 CH3CO माइनस मिलेगा और 0.2 H प्लस मिलेगा, क्योंकि 0.2 ओपन किया, तो रिमेनिंग कितना होगा 1 माइनस 0.2 इज 0.8। तो अब आपको सोल्यूशन में ये भी दिख रहा है, आयंस भी दिख रहे हैं और अनडिसोसिएटेड एसिड भी दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहां पर डबल एरो लगा रहे हैं। प्लस ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि अ स्टेट हैज अचीव्ड वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड दिस स्टेट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये रेशो आने के बाद 2:8 आने के बाद ये डिसोसिएशन रुकेगा नहीं, ये डिसोसिएशन चलता रहेगा। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो एट द सेम स्पीड, द सेम टाइम ये दोनों एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके लिए द रेशो विल रिमेन सेम, मींस डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड एसोसिएशन ऑफ एसिड विल मूव इन द सेम स्पीड, जिसके वजह से डिसोसिएशन भी नहीं रुक रहा है, एसोसिएशन भी नहीं रुक रहा है, एक डायनामिक स्टेट आ गया है। प्लस द रेशियो ऑफ डिसोसिएट टू अनडिसोसिएट इज रिमेनिंग व्हाट, कांस्टेंट, मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये इक्विलिब्रियम आयंस के वजह से हुआ, दैट इज व्हाई दिस इक्विलिब्रिया विल बी कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम in case of weak electrolyte where they dissociate to less extent. So dissociate होने के बाद they reach to a ratio at a constant temperature. याद रखना, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन और बढ़ेगा बिकॉज ऑफ थर्मल वाइब्रेशन। मैं यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर there will be a fixed ratio between the dissociated and undissociated molecules. ओके, एंड दिस स्टेट इज अ डायनामिक स्टेट, जहां पर एक मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट, फिक्स रेशो आने के बाद, यहां पर रेशो हमको क्या मिल रहा है 2:8, तो 2:8 आने के बाद अगर एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो एट द सेम टाइम वन मॉलिक्यूल विल व्हाट, एसोसिएट, एंड दिस विल गो विद द सेम स्पीड। तो देयरफॉर इक्विलिब्रियम इज बीन डेवलप एंड दिस इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम में आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। दैट इज व्हाई दिस इक्विलिब्रियम विल बी कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रिया। सेम थिंग विद द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब आप सोचो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का क्या फंडा है। मैंने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को ही क्यों फोकस किया है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लाइक AgCl हो गया, AgI हो गया, कैडमियम क्लोराइड हो गए, ऑल दी सॉल्ट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉर्मली ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में जाते हैं। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का क्या फंडा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक AgCl,
एग्जाम्पल देख लेना समझने के लिए। ये AgCl को मैंने, ये सॉलिड स्टेट में था, इसको मैंने एक्वस स्टेट में डाला, वाटर में ऐड किया। तो समझो सपोज ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम में से 0.2 ग्राम डिजॉल्व हो गया। तो ये AgCl एक्वस मीडियम में कितना डिजॉल्व हुआ? 0.2 ग्राम। और सॉलिड स्टेट में कितना बच गया? 0.8 ग्राम। ये आपके बॉटम पे दिखाई देगा। तो जो बीकर में आपने AgCl डाला है उसमें ये 0.2 ग्राम डिजॉल्व हुआ है, 0.8 ग्राम डिजॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको बॉटम पे दिखेगा। आप बोलेंगे सर एक सैचुरेट सोल्यूशन बन गया है, बिकॉज सैचुरेट सोल्यूशन और दो सोल्यूशन व्हेन फर्दर नो मोर सोल्यूट कैन बी फर्दर डिजॉल्व। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि सैचुरेशन दो टाइप का हो सकता है। एक ये सैचुरेशन कि वाटर की डिजॉल्विंग कैपेसिटी खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया, ओके, आई टेक 50 ml ऑफ वाटर, यू ऐड 1 स्पून ऑफ NaCl, 10 ग्राम NaCl डाला, स्टर किया, डिजॉल्व हो गया, फिर 1 ग्राम डाला, डिजॉल्व हुआ, 2 ग्राम डिजॉल्व हो गया, फिर एक और ग्राम डाला, डिजॉल्व नहीं हो रहा। तो आप बोलेंगे सर अभी वाटर की डिजॉल्विंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, मतलब अ स्टेट ऑफ सैचुरेशन हैज अचीव्ड। अब दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है? दूसरा ये कंडीशन हो सकता है कि वाटर की डिजॉल्विंग कैपेसिटी है बट दैट सॉल्ट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, जो सिर्फ उतना ही डिजॉल्व हो सकता है। लाइक AgCl मैंने लिया, 1 ग्राम लिया, उसमें से 0.2 ही डिजॉल्व हो रहा है, 0.8 डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सैचुरेशन विद रिस्पेक्ट टू द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। और वहां जो सैचुरेशन था इज रिस्पेक्ट टू द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिजॉल्व द सॉल्ट। दो फर्क है। तो यहां पर मैंने AgCl पानी में लिया, उसमें से 0.2 ग्राम डिजॉल्व हुआ, 0.8 ग्राम डिजॉल्व नहीं हुआ, वो बॉटम पे दिखाई देगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जो 0.2 ग्राम डिजॉल्व हुआ है वो तो ऑब्वियस बात है आयंस के फॉर्म में रहेगा, मतलब डिजॉल्व हुआ तो आयंस के फॉर्म में आएगा, तो आयंस के फॉर्म में आएगा, मतलब यू हैव 0.2 ग्राम ऑफ Ag प्लस इन एक्वस मीडिया प्लस 0.2 ग्राम ऑफ Cl माइनस इन एक्वस मीडिया, 0.2 0.2, और बाकी का सॉलिड पार्टिकल्स कितना ग्राम है? 0.8 ग्राम। सो अब यहां पर 2:8 का फिक्स रेशो आ गया सपोज। अब मुझे एक बात बताओ, जो AgCl बॉटम पे है क्या वो डिजॉल्व होना बंद हो गया है? नहीं, वो डिजॉल्व होना बंद नहीं हो गया। जो बॉटम पे रहेगा ना वहां पर क्या होगा, जो AgCl बॉटम पे सॉलिड फॉर्म में है वो लैटिस फॉर्म में है, उस लैटिस में कौन है? Ag प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर उसमें से एक Ag प्लस और Cl माइनस लिक्विड स्टेट में गया, मतलब एक्वस स्टेट में गया आयंस बन के, तो एट द सेम टाइम जो वाटर के अंदर Ag प्लस Cl माइनस रहेंगे वो लैटिस पे आके बैठ जाएंगे और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी स्पीड ऑफ डिसोल्यूशन, स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट will become what? Same. So there will be an equilibrium develop between dissolve and undissolve. Here the equilibrium is between dissociated and undissociated. In case of weak electrolyte, weak acid, weak base. In case of sparingly soluble salt, there is a equilibrium between dissolve and undissolve. Dissolve and undissolve. डिसोसिएट एंड अनडिसोसिएट, मतलब आपने एसिडिक एसिड 1 ग्राम लिया, वो पूरा के पूरा पानी में डिसॉल्व हो गया, लेकिन उसमें से 0.2 ग्राम डिसोसिएट हो रहा है, बाकी डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर डिसोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है एसिडिक एसिड में, डिसोसिएट और अनडिसोसिएट का प्रॉब्लम है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में क्या है कि यहां पर जो AgCl लिया है उसमें से 1 ग्राम में से 0.2 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है, बाकी 0.8 ग्राम अनडिजॉल्व है। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम है इज बिटवीन डिजॉल्व विच फॉर्म्स आयंस, ऑब्वियसली बिकॉज मैंने बताया था कि सारे सॉल्ट स्ट्रांग होते हैं, अगर वो डिजॉल्व हो गए तो वो आयंस बनाएंगे। तो देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन डिजॉल्व एंड undissolved. In case of sparingly soluble salt, in case of weak acid, weak base, there is a equilibrium between dissociate and undissociate. लेकिन देखा जाए तो दोनों इक्विलिब्रियम में क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? आयंस, दैट एंड आयंस, और आयंस का फॉर्म हो गया बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन, मतलब दोनों के अंदर प्रोसेस सेम है आयन बनने का, दैट इज डिसोसिएशन। बट एक जगह पे इक्विलिब्रियम डिसोसिएट अनडिसोसिएट है और एक जगह पे इक्विलिब्रियम डिसॉल्व आयंस एंड अनडिसोसिएट अनडिसॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स का है। तो लेकिन दोनों जगह आयंस है, इसके लिए दिस इक्विलिब्रियम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया। ओके, सो आयनिक इक्विलिब्रिया का मैंने दोनों एग्जांपल्स आपको बता दिए, स्पेरिंगली भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी। नोट्स बनाने के लिए कॉपी करो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इन दिस।
Okay guys, after the discussion of ionic equilibria, the introduction of ionic equilibria, now let's see what you're going to learn in this chapter. Now in this chapter, first part will be based on acid base theory. Second, you're going to study about strength of electrolytes. Then entire theory about pH and pOH. Then we are going to study about salts, all different types and their relationships of different terms involved in it. Then common ion effect, buffer solutions, and the last part will be solubility product for sparingly soluble salts. तो ये सब चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एसिड बेस थियरी. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पीएच, पीओएच, सॉल्ट, कॉमन आयन, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे. सो स्टार्ट विद द एसिड बेस थियरी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट आयंस, we talk about substance which produce ions, and basically those are acid, base and salt. So let's talk about acid and base. Now acid and base को define करना है तो दो टाइप की थ्योरी उसको डिफाइन कर सकती है. एक होती है क्लासिकल थ्योरी, द ओल्ड थ्योरी, और एक होती है मॉडर्न थ्योरी. मॉडर्न थ्योरी आपको रीजंस देती है, क्लासिकल थ्योरी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है. मतलब इन केस ऑफ क्लासिकल या ओल्ड थ्योरी, प्रिमिटिव थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या हो सकते हैं. आपने लाइम टेस्ट किया होगा, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, लाइम इज सार टू टेस्ट. तो आई कैन से एसिड्स आर दोस सब्सटेंस व्हिच आर सार टू टेस्ट. दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड. दे कैन न्यूट्रलाइज बेस. ऑब्वियस बात है, एसिड बेस मिक्स करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा. एंड न्यूट्रलाइजेशन, अर्लियर इट वाज अ थिंकिंग कि न्यूट्रलाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, वाटर. सो दीज आर एसिड. बेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेस आर, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे सोप. सोप एक बेसिक मटेरियल होता है. ओके, उसमें सोप इज नथिंग बट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स. तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है. तो सोप को आपने देखा होगा, इट्स अ बेसिक मटेरियल, इट्स बिटर टू टेस्ट. तो बेस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर टू टेस्ट. सेकेंड, बेस आर दो सब्सटेंस विच आर सोपी टू टच, बिकॉज सोप का कंटेंट ही वही है. मतलब अगर प्योर NaOH एक्वस सोल्यूशन हाथ में गिर जाएगा तो वो सोपी जैसा फील होगा. ओके, एंड दे कैन न्यूट्रलाइज व्हाट, एसिड. एसिड को भी वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. तो ये जो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं कि एसिड्स के बारे में, दे आर सार टू टच, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, दे कैन न्यूट्रलाइज बेस, दे कैन ब्रेक बेसिक सॉल्ट्स. या तो मैं बेस के बारे में जो बता रहा हूं कि बेस आर बिटर टू टेस्ट, दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, दे आर सोपी टू टच, दे कैन न्यूट्रलाइज एसिड. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आइडियाज है एसिड बेस के, जो क्लासिकल थियरी में थे. बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द रीजनिंग, बिकॉज जैसे ही डिस्कवरी होती गई वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट मिल गए हैं. और सॉल्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ गए. कुछ सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है, कुछ सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है, कुछ सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट है. तो उनको भी क्लासिफाई किया गया. ठीक है. सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न थियरी एसिड बेसिस के बारे में क्या बोलता है. ओके, सो मॉडर्न थियरी ऑफ एसिड बेस, तीन टाइप की है. एक है Arrhenius theory of acid base. Second is Lorry-Bronsted theory, and third is Lewis theory of acid base. साइंटिस्ट के नेम्स पे ये सब. ओके, इसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे
आरएनएस थियरी ऑफ एसिड बेस। तो आरएनएस थियरी के हिसाब से एसिड्स क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। HCl लिया, आरएनएस थियरी को बोलेंगे एसिड क्या है, तो बोलेगा टेक HCl, ऐड इनटू वाटर, इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म व्हाट, H प्लस आयंस इन एक्वस मीडिया एंड Cl माइनस आयंस इन एक्वस मीडिया। ओके, you take acidic acid, you take formic acid, COOH, you add to acidic media, it will form HCOO minus in aqueous media, formate ions and H plus ions in aqueous media, but representation should be in reversible arrow. Why in reversible arrow? बिकॉज ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम डेवलप होगा बिटवीन डिसोसिएट एंड अनडिसोसिएट। HCl में क्या लिखा, इरिवर्सिबल, क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट होगा, ये कुछ नहीं दिखेगा, सारे आयंस ही दिखेंगे, इसमें दोनों दिखाई देंगे। तो वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब सपोज HNO3 लिया, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली टू फॉर्म H प्लस आयन इन एक्वस मीडिया एंड नाइट्रेट आयन इन एक्वस मीडिया एंड सो ऑन। ओके, अभी अगर मैं पूछ रहा हूं कि वाटर बेस, तो बेस क्या होता है, तो एग्जाम्पल्स देखो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन NaOH इन एक्वस मीडिया, सो इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है टू फॉर्म Na प्लस आयन इन एक्वस मीडिया एंड OH माइनस आयन्स इन एक्वस मीडिया। इफ आई टेक सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सपोज कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस, तो एक्वस मीडिया में डाला, तो ये एक वीक बेस है, तो रिवर्सेबल एरो, बिकॉज दोनों दिखाई देंगे, Cu2 प्लस इन एक्वस मीडिया plus 2 moles of OH minus in aqueous media. You take NH4OH. NH4OH is a weak base. It will dissociate feebly, तो reversible arrow to form NH4 plus what, OH minus in aqueous media. So if I say acid base के बारे में स्टडी करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आरेनियस ने क्या सिलेक्ट किया, एक्वस मीडिया। वो बोलता है एसिड बेस को सिर्फ आप कौन से मीडियम में डिफाइन करो, एक्वस मीडिया में। अच्छा, एसिड को कैसा डिफाइन करो, सो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच डोनेट H प्लस, एंड H प्लस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटॉन। तो दे आर प्रोटॉन डोनर्स इन विच मीडिया, एक्वस मीडिया। बेस आर those substance which dissociate in aqueous media to produce hydroxide ion, मतलब they produce OH minus ions, hydroxide ions, in which media, again aqueous media। और आपको ये भी समझ में आ गया, मैंने यहाँ पर irreversible और reversible क्यों लिखा है। स्ट्रॉन्ग के लिए आप irreversible लिखोगे और वीक के लिए आप क्या लिखोगे, रिवर्सेबल। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके लिए आपने इरिवर्सिबल लिखा स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए रिवर्सेबल क्यों, क्योंकि इनके यहाँ पर इक्विलिब्रियम डेवलप होता है बिटवीन डिसॉल्व, बिटवीन डिसोसिएट एंड अनडिसोसिएट्स। सो according to Arrhenius theory, acids are those substances which produce H plus ions on dissociation in aqueous media. Base are those substances which produce OH minus ions in aqueous media. And what will be the neutralization reaction for this theory? So neutralization reaction will be, समझो अपने HCl लिया aqueous media में, NaOH लिया aqueous media में, तो they will react to form NaCl in aqueous media plus अनडिसोसिएट वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर लिखते हैं तो जब भी आप एक्वस नहीं, वाटर के लिए आप लिक्विड लिखते हो, अनडिसोसिएट वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्योर वाटर वीक होता है, ठीक है। तो एसिड बेस गिव्स यू व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर, अनडिसोसिएट वाटर, बिकॉज वाटर इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट प्योर केस में। अच्छा, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो क्या बनेगा, ये H प्लस आयन्स इन एक्वस मीडिया, Cl माइनस आयन्स इन एक्वस मीडिया, पूरा डिसोसिएट किया बिकॉज ये HCl है, स्ट्रॉन्ग है। NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, तो Na प्लस आयन्स इन एक्वस मीडिया, OH माइनस आयन्स इन एक्वस मीडिया, डिसोसिएट्स स्ट्रॉन्ग है, पूरा डिसोसिएशन दिखाया। NaCl, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, Na प्लस इन एक्वस मीडिया प्लस Cl माइनस इन एक्वस मीडिया प्लस H2O। मैंने H2O का डिसोसिएशन नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज H2O इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्योर वाटर वीक होता है। तो जब ये रिएक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द थियोरटिकल रिएक्शन, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, ये एक प्योर वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्योर वाटर का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, 1.8 10⁻⁹
1.8 10⁻⁹ इसका मतलब 10⁹ मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है 1.8, तो उनका डिसोसिएशन नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये 10⁹ मॉलिक्यूल्स लिए तो ये पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे। दैट इज बाई शोइंग द डिसोसिएशन, इनका नहीं दिखा रहे आप वाटर का। आप अगर कॉमन टर्म्स कैंसिल कर दोगे दोनों साइड से Na+Cl-, so what do you get finally? That H+ ions in aqueous media combines with OH- ions in aqueous media to form undissociate water molecule. This can also be a neutralization definition for Arrhenius theory. So Arrhenius theory में acids are those substances which dissociate to produce proton in aqueous media. Base are those substances which dissociate to produce OH- in aqueous media. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड इन एक्वस मीडिया कंबाइंस विद बेस इन एक्वस मीडिया टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड अनडिसोसिएट अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल। मैंने बताया क्यों, बिकॉज वाटर इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट। और उसका दूसरा डेफिनेशन होता है कि अ प्रोटॉन इन एक्वस मीडिया कंबाइंस विद हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडिया टू फॉर्म अनडिसोसिएट वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो ये था आरएनएस थ्योरी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बट आरएनएस थ्योरी में ना काफी सारे लिमिटेशंस हैं समझने के लिए। वो क्या है? लेट अस टॉक अबाउट दैट। ये आप लोग पॉज करके कॉपी कर लो जब तक। विल स्टार्ट विद द लिमिटेशन इन दिस थियरी। इनका सबसे बड़ा लिमिटेशन है दैट दिस थियरी इज लिमिटेड ओनली टू एक्वस मीडिया। मतलब हम सिर्फ एसिड बेस को कौन से मीडियम में डिफाइन कर सकते हैं? एक्वस मीडिया में। और उनका स्ट्रेंथ भी एक्वस मीडिया में चेक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा इन्होंने सिर्फ एक्वस मीडिया लेके ही रिएक्शन किया है, दैट इज द रीजन। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का नेचुरल स्टेट है गैस, HCl का नेचुरल स्टेट है गैस, लेकिन when ammonia gas combines with HCl gas it forms wide fume of NH4Cl solid, वाइड फ्यूम्स बनते हैं इसके NH4Cl के। तो वाइट फ्यूम्स बनने का मतलब क्या हो गया? बनने का मतलब ये हो गया कि अमोनिया और HCl दोनों आपस में कंबाइन हो गए। HCl एक एसिड है, अमोनिया एक बेस है। HCl एक एसिड है, अमोनिया एक बेस है, बट कौन से मीडियम में? गैस मीडियम में। वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? एक सॉल्ट बना रहे हैं। मतलब दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से मीडिया में हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ गैस मीडिया में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन दिस थियरी इज लिमिटेड टू विच मीडिया? एक्वस। तो अगर आरएनएस को हम लोग पूछेंगे कि व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ HCl गैस, वो नहीं एक्सप्लेन करेगा। वो बोलेगा अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करो, वाटर से रिएक्ट करके वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फिर हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद वो OH- देगा, तभी मैं इसको बेस बोलूंगा। मतलब उसके हिसाब से बेसिक कंपोनेंट वो था जो पानी में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड दे। बट ऐसा नहीं है। If ammonia is only base in water, then it should not have reacted with HCl gas, but it is reacting with HCl gas, which proves कि ammonia is base even in the gaseous state. इसके जो नेचुरल स्टेट में वो गैस के स्टेट में भी वो बेस है। बट ये चीज आरएनएस नहीं बता सकता, बिकॉज दैट थियरी इज ओनली लिमिटेड टू एक्वस मीडिया। सेकेंड थिंग, आरएनएस सेज एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच आर प्रोटॉन डोनर। मतलब वो क्या डोनेट करना चाहिए? H+ ions. But there are many substances like carbon dioxide, SO2 gas, AlCl3, CuSO4, salt है ये, CuSO4, salt, oxides of non-metal, CO2, SO2, ये एक्सेट्रा। इनके अंदर कहीं पर भी प्रोटॉन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या बिहेव करते हैं? एसिड बिहेव करते हैं। अच्छा, बेस, अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस लाइक अमोनिया, इसके अंदर हाइड्रोक्साइड है क्या? हाइड्रोक्साइड नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ओके, सोडियम ऑक्साइड, क्लियर है, एक्सेट्रा। ये क्या इनके अंदर कहीं पर भी हाइड्रोक्साइड है? नहीं है। फिर भी ये क्या बिहेव कर रहे हैं? बेस। सो देयर आर मेनी सब्सटेंस विच बिहेव लाइक एन एसिड एंड बेस, बट दे डू नॉट हैव H+, दे डू नॉट हैव OH-, और उनको आरएनएस एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू आरएनएस, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अकॉर्डिंग टू आरएनएस, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयंस इन द एक्वस मीडिया. बट बात यह है कि H+ आयंस अगर कोई एसिड हम लोग लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस मीडिया, उस एसिड को एक्वस मीडिया में डालोगे तो वो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? H+ आयंस. बट H+ आयंस नेवर रिमेन्स इन फ्री स्टेट, remains in free state but in combined state. वो क्यों? बिकॉज H+ आयंस का साइज बहुत छोटा है. इट्स वेरी 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 स्मॉल, 10⁻⁻15 नैनोमीटर का साइज है, जिसके वजह से ये हाईली रिएक्टिव और हाईली अनस्टेबल है. तो पानी में जाने के बाद ये H+ के स्टेट में नहीं रहता, बल्कि व्हाट विल हैपन, दिस H+ आयंस कमिंग फ्रॉम एन एसिड, इट विल कंबाइन विद वाटर. और वाटर पे आपको याद होगा दो लोन पेयर्स होते हैं, जिसमें से वाटर अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ HOH एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड H+. देखो ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, and this compound so form is called as hydronium और oxonium ion. मतलब H+ पानी में H+ के फॉर्म में नहीं रहता, बट एक्चुअली इट इज इन द फॉर्म ऑफ H3O+, इसके फॉर्म में रहता है. हालांकि H3O+ एंड H+ की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ H3O+. मतलब अगर मैंने HCl को वाटर में ऐड किया एक्वस मीडिया में, तो मुझे मिलेगा H3O+ एंड Cl-, बिकॉज H+ जो मिल रहा है इट नेवर रिमेन्स इन द फ्री स्टेट, इट ऑलवेज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट. और जब वो H3O+ बना देगा, H3O+ बना देगा, सी प्रॉपरली, OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड H+, तो क्या होगा पता है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और ज़्यादा तरीके से, जिसपे ये हाइड्रोजन्स पे क्या आ जाएगा, Δ+ चार्ज. अब नाउ व्हाट विल हैपन, दिस H3O+ कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल. देखो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल ऐसा आपको दिखाई देगा, HOH. तो देखो यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर Δ- आया. देखो ये बॉन्ड्स ये बना सकते हैं, दे कैन मेक अ बॉन्ड राइट नाउ कि H+ एंड O के साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है. सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. तो अभी H3O+ एक और H2O से कंबाइन हुआ, तो H3O+ कंबाइनिंग विद H2O वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल याद होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, H3 और प्लस 2 हाइड्रोजन यहां से, मतलब क्या हो गया H5O, कितने हो गए 2+, मतलब H3O+ के साथ में क्या बन जाएगा इसके अंदर, H5O2+, H7. अगर एक और एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया एसोसिएट हो गया इधर पे कहीं, तो H7O3+, ठीक है, या H9O4+. इसे पॉसिबिलिटी कैन फॉर्म इन वाटर. तो ये सारे आयंस आपको मिलेंगे. प्लस दूसरी बात ये है कि अपार्ट फ्रॉम दी H+ आयंस, प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, ये तो एक पॉइंट है. बेस के लिए क्या है कि बेस क्या डिसोसिएट करना चाहिए, OH- आयंस. बट OH- आयंस वाटर में जाने के बाद क्या करता है, ध्यान देना, OH- आयंस वाटर में जाने के बाद it can form a hydrogen bond with a water molecule inside. मतलब OH- जो बना है बेस से, वो इसके साथ कंबाइन हो सकता है. देखो H+ ऑफ वाटर एंड OH- का ऑक्सीजन, दे कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड, दे कैन एसोसिएट. सो एसोसिएट होने के बाद ये OH- अब कैसा आपको दिखाई देगा, H3 1 2 3 H3O2-. अगर आपने एक और एक वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट कर दिया इधर पे लाइक दिस, जो H+ के साथ कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो अब 2 हाइड्रोजन और बढ़ा दो, तो वो हो जाएगा H5O3-. तो ये भी बन सकता है वाटर के अंदर. क्लियर है. सो यू कैन हैव दिस फॉर्मिंग इनसाइड द वाटर. सो आपको ये समझना है कि H+ आयंस नेवर रिमेन इन द फ्री स्टेट, इट ऑलवेज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट. इवन OH- आयंस भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के बाद कैन फॉर्म H3O2-, कैन फॉर्म H5O3-, कैन ऑल्सो फॉर्म H7O4-. तो ये स्टेट है हाइड्रोक्साइड का और H+ का पानी के अंदर. तो H+ आयंस never remain in free state,
वेरी स्मॉल साइज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से गेट अट्रैक्टेड टू द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो H3O+ बनाते हैं। अब H3O+ H+ के जैसा ही है, मतलब केमिकली H+ एंड H3O+ इज सेम, हाइड्रोनियम आयन एंड प्रोटॉन इज केमिकली सेम, बट ये हाइड्रोनियम आयन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद कैन कन्वर्ट इनटू H3O+। अगर एक वाटर के साथ में हाइड्रोजन बनाएगा तो इट फॉर्म H5O2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, 2 के साथ में H7, 3 के साथ में H9। सिमिलरली OH- आयन जो बेस से निकला है वो भी फ्री स्टेट में नहीं है, वो क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, किसके साथ, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, टू फॉर्म H3O2-, 2 के साथ H5O3, 3 के साथ H7O4। तो दिस इज अ स्टेट ऑफ H+ एंड OH- आयंस, एंड दिस इज द लिमिटेशन। सो आरएनएस थ्योरी का लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन यह है कि द थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल टू एक्वस मीडिया। It cannot able to explain the neutralization reaction in any other media except aqueous media. गैस में भी हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन। थर्ड, molecule like CO2, SO2, AlCl3, CuSO4, CuCl2, FeCl3, ये सारे एसिडिक सब्सटेंस है, बट इनमें कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो आरएनएस ने नहीं एक्सप्लेन किया। बेस लाइक अमोनिया, बेस लाइक अमाइंस RNH2, ऑर्गेनिक अमाइंस है। बेस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, दैट इज ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, वो भी बेस है, बट उनमें कोई OH- आयंस नहीं है, वो आरएनएस ने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर आरएनएस के हिसाब से H+ आयंस रिमेन इन द फ्री स्टेट, गलत है, बिकॉज H+ आयंस इज सो स्मॉल, 10⁻15 मीटर का उसका रेडियस है, इट्स सो स्मॉल दैट it is highly unstable, highly reactive, it combines with water to form hydronium ion H3O+, and H3O+ can combine with other water molecules to form different hydrogen bonded waters, that is H5O2, H7O3, H9. Similarly, OH- ions can also form hydrogen bonding and convert into different hydrogen bonding state with water. एक water के साथ H3O2 minus, 2 होगा तो H5, 3 होगा तो H7. So this is limitation of RNS media. Okay, so note down this point. Then we'll move on to the next theory. The next theory defining acid base is Lorry and Bronsted theory of acid base. Now, according to Lorry and Bronsted theory, acid क्या है? Acid are proton donors. And what are base? Base are proton acceptor. देख लो दोनों का डिफरेंस। आरएनएस थ्योरी में एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, बेस आर हाइड्रोक्साइड डोनर। इसने हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट ही नहीं किया, इसने बोला एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। मतलब इसने बेस के लिए हाइड्रोक्साइड्स की कंडीशन निकाली दी। ओके, दूसरी बात, मीडियम डिफाइन नहीं किया, ये नहीं बोल रहा है कि एक्वस मीडिया, द रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन एनी मीडिया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन अमोनिया नेचुरल स्टेट उसका गैस है, यहां पर आ गया HCl का भी नेचुरल स्टेट गैस है। आप दोनों को रिएक्ट करोगे तो व्हाट विल हैपन, HCl अपना H+ अमोनिया के पास देगा, अमोनिया लोन पेयर देके वो H+ को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट कर लिया, टू फॉर्म व्हाट, NH4+ एंड Cl- आयंस। नाउ दिस NH4+ एंड Cl- आयंस जो बने हैं वो कैसा बने हैं, जब अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टर मतलब अमोनिया बेस हो गया, HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया तो HCl क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, एसिड बेस। अब बराबर देखोगे तो रिवर्स रिएक्शन में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं रिएक्शन रिवर्सेबल है, थोड़ा सोचने के लिए कि अगर मैं रिवर्स रिएक्शन देखूं, इफ आई टॉक अबाउट अ रिवर्स रिएक्शन, सी प्रॉपर्ली, तो रिवर्स रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। मतलब आप एसिड बेस को देखो, रिवर्स रिएक्शन में भी डिफाइन कर सकते हो। ये आरएनएस में नहीं था, आरएनएस में आप एसिड बेस को सिर्फ फॉरवर्ड में कर रहे हो, मतलब HCl है तो H+Cl- दे रहा है तो HCl एसिड है, लेकिन H+Cl- का क्या, वो क्या है, वो एसिड है, बेस है, क्या है, वो आरएनएस ने नहीं बताया, वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड बता रहा है। वो बोल रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन आप देखते हो तो आपको मिल रहा है कि अमोनिया एक बेस है, HCl एक एसिड है, लेकिन जरा बैकवर्ड रिएक्शन चेक करो तो उसका डेफिनेशन बैकवर्ड रिएक्शन में भी अप्लाई होता है। कैसे, बैकवर्ड रिएक्शन में NH4+ प्रोटॉन दे सकता है, किसको, Cl- को।
तो NH4 प्लस अपना प्रोटॉन अगर Cl माइनस को देगा तो NH4 प्लस प्रोटॉन दे रहा है, तो NH4 प्लस बन गया एसिड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, Cl माइनस बन गया बेस, क्योंकि वो प्रोटॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझा सकता हूं कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड दोनों डायरेक्शन में अप्लाई हो सकता है, जो आरएनएस में नहीं हो सकता है। बिकॉज आरएनएस में अगर आप एक HCl लेते हो, उसको डिसोसिएट करते हो, तो वो आयंस बनेगा, तो आप बोलोगे HCl एसिड है। लेकिन मैं आपको ये पूछूंगा कि H प्लस और Cl माइनस का क्या नेचर है, आप बोलेंगे क्या नेचर है, वो आयंस है। आप ये नहीं बता पाओगे कि एसिड बेस है। लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड बोलता है कि रिएक्शन के बाद जो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें भी एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर बराबर देखो तो। कैसे? फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl ने H प्लस डोनेट किया, बैकवर्ड रिएक्शन में NH4 प्लस प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये एसिड हुआ और ये बेस हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया बेस हुआ, HCl एसिड हुआ। ठीक है। नाउ NH4 प्लस इज अ पार्ट ऑफ अमोनिया, तो पार्ट ऑफ अमोनिया मतलब इट्स अ कॉन्जुगेट ऑफ अमोनिया। NH4 प्लस is a part of ammonia, so we can say that NH4 plus is conjugate acid of base ammonia. Cl minus will be conjugate base of acid HCl. तो अगर मुझे इस थ्योरी का न्यूट्रलाइजेशन डिफाइन करना है तो मैं बोल सकता हूं एसिड कंबाइंस विद बेस टू गिव कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। और आरएनएस में न्यूट्रलाइजेशन क्या था, एसिड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। लॉरी ब्रॉन्स्टेड में क्या है, एसिड बेस गिव्स व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर दो एसिड बेस पेयर है। पहला अमोनिया जो बेस है और उसी का ही पार्ट NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, एसिड बेस पेयर, ये पहला पेयर हुआ। दूसरा पेयर क्या है, HCl जो एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, Cl माइनस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू एसिड बेस पेयर। अगर आपको कभी ढूंढने आया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ढूंढो, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ऐसे ही ढूंढने का, बेस और उसका एसिड। ठीक है, सो दिस इज हाउ you will find conjugate acid base pair in every reaction। बराबर रिएक्शन देखने का, एसिड प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, और हर रिएक्शन में दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं। अब बराबर देखो, किसी एसिड से अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है, किसी एसिड से अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो आप क्या करोगे, आप प्रोटॉन निकाल दोगे -H प्लस। और अगर किसी कॉन्जुगेट एसिड से बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, बेस से कॉन्जुगेट एसिड, तो उसमें प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन, वन प्रोटॉन, दो नहीं, एक प्रोटॉन ऐड कर दोगे। तो बेस से एसिड बनाना है, प्रोटॉन ऐड करो, एसिड से बेस बनाना है, प्रोटॉन सबट्रैक्ट करो। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, अब इस थियरी ने वाटर का एम्फोटेरिक नेचर भी एक्सप्लेन किया है। आपको पता होगा एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। देखो एग्जांपल, मैंने अमोनिया ऐड किया वाटर में, वी नो दैट अमोनिया इज अ बेस, तो वाटर क्या करेगा, अपना प्रोटॉन H प्लस अमोनिया को डोनेट कर देगा, तो जो डोनेट करा तो ये एसिड बन गया। सो नाउ वी हैव NH4 प्लस एंड OH माइनस आयंस। अब रिवर्स डायरेक्शन में NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड बन गया और OH माइनस कॉन्जुगेट बेस बन गया। ये कॉन्जुगेट बेस किसका बना, वाटर का। NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड किसका बना, बेस का। सो मतलब यहाँ पर दो पेयर हो गए। अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर निकालना है तो एक होगा अमोनिया NH4 प्लस, दूसरा होगा वाटर OH माइनस। अब HCl को मैं पानी में डालता हूं, इफ आई ऐड HCl इन वाटर, बराबर देखना, HCl प्रोटॉन डोनेट करेगा वाटर को क्योंकि HCl एसिड है, वाटर प्रोटॉन के H प्लस को अपना लोन पेयर ऑक्सीजन से देगा, तो वाटर क्या बन गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब वाटर क्या बन गया, बेस। सो नाउ इट विल गिव यू H3O प्लस, ये कन्वर्ट होगा H3O प्लस में, प्लस Cl माइनस।
ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में H3O+ की टेंडेंसी है प्रोटॉन देने की, मतलब H3O+ एक कॉन्जुगेट एसिड है और Cl- प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, H+ एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो एक कॉन्जुगेट बेस है। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर निकालेंगे तो HCl एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? Cl-, HCl, Cl-। H2O बेस है, उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? H3O+, तो H3O+, H2O कॉन्जुगेट, दीज आर व्हाट? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और इस रिएक्शन ने हमको क्या सिखाया कि वाटर एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। इसका मतलब H2O एक कौन सा सब्सटेंस हुआ? एम्फोटरिक। वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। ओके, लेकिन व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ये पॉइंट समझ गए। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी में कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। दूसरी बात, द theory is not defined, is not confined to aqueous media, it can be defined, you can define neutralization reaction in gaseous media also। थर्ड, बेस के लिए OH- का क्राइटेरिया उसने निकाल दिया। फोर्थ, आप रिवर्स डायरेक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको भी एसिड बेस की तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए हर रिएक्शन में एक एसिड होता है तो उसका एक कॉन्जुगेट बेस होगा और एक बेस होता है उसका एक कॉन्जुगेट एसिड होगा, सो यू हैव कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिएक्शन ने प्रूव किया कि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, इट कैन डोनेट प्रोटॉन। ओके, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉज करके आप लोगों को लिख लेने का नोट्स में। एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट in case of Lorry and Bronsted theory? इनफैक्ट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसके अंदर कि ऑल लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर Arrhenius acids. Why? Because both of them are proton donor. But all bases, कौन से bases? Lorry Bronsted bases are not Arrhenius acid. But all Lorry Bronsted bases are not Arrhenius बेस। सेकेंड, इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस गिव्स यू कॉन्जुगेट एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस। थर्ड, अगर आपको एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना है, रिमूव अ प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन, और अगर आपको बेस दिया है उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो ऐड अ प्रोटॉन। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, stronger the acid, weaker the conjugate base, and vice versa। तो एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, बेस स्ट्रॉन्ग लिया है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। ये हमेशा याद रखना। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड, weaker the conjugate base, stronger the acid, weaker the conjugate base। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एसिड के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसका हम लोग कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। ओके, अब एसिड देख लो, मैं एग्जाम्पल्स में क्या ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग एसिड्स एज सबसे पहला एसिड लेता हूँ HClO4। ठीक है, HClO4 एक एसिड है, पर क्लोरिक एसिड। फिर सपोज मैं ले रहा हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देन यू हैव HI, HBr, HCl, HNO3। ठीक है, अभी
ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ है, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब HClO4 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 से उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HI है, फिर HBr है, HCl, फिर HCl से HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है HNO3 से। ओके, सो यू हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, HCl HNO3 मैंने ये सब लिया है इसके अंदर। देन यू कैन हैव अ H3PO4, सपोज मैंने ये ले लिया एसिडिक एसिड दैट इज CH3COH, ये एसिड डाल देता हूँ। देन यू कैन हैव हाइड्रोजन साइनाइड, NH4+ लेता हूँ, अमोनियम, ये भी एक एसिड है, प्रोटॉन दे सकता है। समझो हाइड्रोजन साइनाइड लिया, HCN, ये भी एसिड दे सकता है। फिर फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक फिनॉल, C6H5OH, ये भी H+ दे सकता है। सपोज वाटर लिया, HOH, ये भी H+ दे सकता है। ओके, देन 12 आई कैन टेक अल्कोहल, ROH, ये भी H+ दे सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा बढ़ रहा है, मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब अगर मैंने इनका कॉन्जुगेट बेस बनाया है, तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा? बाय रिमूविंग अ प्रोटॉन। तो HClO4 का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा ClO4-, एक H+ निकाल दिया आपने तो ClO4- बना। H2SO4 का हो जाएगा HSO4-, ठीक है, HSO4-, HSO4- फिर डिसोसिएट हो सकता है तो गिव HSO4-2। देखो एक H+ निकाला तो HSO4- बना, फिर एक H+ निकाला तो SO4-2, ठीक है। HI का आपने एक H+ निकालो, I-। कोई बोलेगा सर H2SO4 ने आपने 2 H+ क्यों नहीं निकाला? मतलब 2 क्यों निकालूं? H2SO4 एक डायप्रोटिक एसिड है, तो वो एक एक स्टेप में डिसोसिएट हो रहा है। पहले वो डिसोसिएट होकर HSO4- बनेगा, फिर H+ डोनेट करके SO4-2 बनेगा, ठीक है। और आपको किसी भी एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक प्रोटॉन निकालना होता है। मतलब H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस HSO4- है, HSO4 का कॉन्जुगेट बेस SO4-2 है। मतलब ये सल्फेट H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस नहीं बनेगा। याद रखने का, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एक प्रोटॉन निकालना है ना। HBr का आप निकाल दो तो बचेगा Br-, ये बचेगा Cl-, ये हो जाएगा NO3-, एसिडिक एसिड बचेगा CH3CO-, फिर NH4+ में से एक H+ निकालोगे तो यू गेट NH3, क्योंकि H+ निकाल दिया। HCN से यू गेट CN-, C6H5OH- से H+ निकाल दोगे तो यू गेट C6H5O-, वाटर से निकाल दोगे तो OH-, अल्कोहल से निकालोगे तो RO-, H+ निकाला। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ना, एसिड का इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऐसा है, ये बेसिक स्ट्रेंथ है। मतलब RO- will be stronger base than OH-, which is stronger than CN, which is stronger than NO3, which is stronger than ClO4-। मतलब यहाँ पर HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। सपोज HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो ये ClO4- उसका सबसे वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस माना जाएगा। इन सब में से ये वीकेस्ट हो गया, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया RO-। ये सबसे वीक एसिड हुआ अल्कोहल, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। ये याद रखने का हम लोगों को, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक रहेगा। दूसरी बात, रिमेंबर डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक एसिड H2SO4 मैंने आपको बताया था। H2SO4 एक एसिड है, जब वो डिसोसिएट होता है तो वो बनता है HSO4-, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। फिर HSO4- फर्दर डिसोसिएट होता है तो SO4-2 बनता है। मतलब HSO4- जब एसिड बनेगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस SO4-2 होगा, और H2SO4 जब एसिड बनेगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस HSO4- होगा। मतलब HSO4- इज बिहेविंग एज कॉन्जुगेट बेस एज वेल एज, मतलब बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसको प्रोटॉन दोगे, H+ दोगे, तो वो एक्सेप्ट करके वापस ये बना सकता है H2SO4। तो इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर प्लस H+ डोनेट करके SO4-2 बना सकता है। मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है और प्रोटॉन डोनेट भी कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि HSO4- एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ठीक है।
दोनों काम कर रहा है, बेस का भी और एसिड का भी। सिमिलरली एक ट्राइप्रोटिक एसिड लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल H3PO4। H3PO4 ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, एक ही प्रोटॉन निकालना है, तो H2PO4 माइनस, H प्लस निकल गया ना, एक ही H प्लस निकाला, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। अच्छा अभी H2PO4 माइनस बोलेगा, मैं भी डिसोसिएट होगा, मेरा हो जा, तो क्या बनेगा HPO4 माइनस 2, आपने एक H प्लस फिर निकाल दिया यहां से, तो -2 का चार्ज आ गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, H2PO4 माइनस एक एसिड बन गया यहां पर। अच्छा HPO4 -2 बोला सर मैं भी डिसोसिएट होऊंगा, मेरा हो जा, क्या बनेगा PO4 -3, तो अब HPO4 -2 यहां पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो बराबर देखो H3PO4 एसिड है लेकिन H2PO4 माइनस बिहेविंग एज बोथ, तो M4, HPO4 -2 बिहेविंग एज बोथ, तो M4, मतलब ट्राइप्रोटिक एसिड 2 M4 दे रहा है, डाइप्रोटिक एसिड 1 M4 देगा। तो आपको क्या याद रखने का इसके लिए कि डाइप्रोटिक एसिड डाइप्रोटिक होगा तो एक M4 मिलेगा, और अगर ट्राइप्रोटिक होगा तो 2 M4 मिलेंगे। इसका मतलब अगर आपका एसिड HN है एसिड के अंदर, ठीक है, N कैन बी 1 2 3 4 5, तो आपको जो M4 मिलेंगे M4 वो N-1 मिलेंगे। तो H इज नथिंग बट द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द एसिड। तो सपोज मैंने एसिड को ऐसा लिखा HNA, वे N इज द नंबर, कौन सा नंबर, 2 3 एनी नंबर। तो अगर आपके पास H3 वाला एसिड है तो एम्फोटेरिक स्पीशी 2 मिलेंगे, H2 वाला एसिड है तो एम्फोटेरिक स्पीशी 1 मिलेगा, N-1 याद रखने का। तो डाइप्रोटिक एसिड गिव्स 1 M4 स्पीशी, ट्राइप्रोटिक एसिड गिव्स 2 M4 स्पीशी, एंड स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। रिमेंबर दिस, कॉपी इट डाउन, पॉज करो और कॉपी कर लो। Then we will move on to the next theory, that is the Lewis theory of acid base, more advanced theory. I'll rub this out now. Okay guys, let's move on to the third theory which discuss acid and base. Is the Lewis theory of acid and base. Now according to this theory, acids are electron pair acceptor, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, बट दे पेयर, they accept electron pair, they are not accepting one electron, they are accepting a pair of electrons. And base are electron pair donors. तो एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मतलब एसिड एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बेस एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल में लेता हूं, देखो बराबर देखना, एग्जांपल देखो, अमोनिया में नाइट्रोजन हैज लोन पेयर। टॉक अबाउट BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो जब वो BF3 से कंबाइन होगा, अमोनिया अपना लोन पेयर बोरॉन को डोनेट करेगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट and to form NH3 BF3 complex. Now in this complex, ammonia is donating a pair of electrons to form a covalent bond. So this pair of electrons is called as coordinate bond. So this complex is a coordinate complex. So मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि when in case of neutralization reaction of acid and base, when Lewis acid reacts with Lewis base, Lewis acid are electron pair acceptor and base are electron pair donor। जैसे ये एग्जाम्पल में अमोनिया एक Lewis base बन गया है और BF3 एक Lewis acid बन गया है, तो they will combine to form coordinate complex, a coordinate bond where a pair of electrons donated by a single atom is shared between two, तो उसको इनको कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम लोग। तो इनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस गिव्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एग्जांपल्स ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? सबसे पहले सिंपल कटायंस।
कटायंस लाइक H प्लस, मेटल कटायंस, जैसे उन्होंने लिख दिया Al3 प्लस, Cu2 प्लस एक्सेट्रा, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. These simple cations, they are electron deficient, obviously they can accept electrons, so they can form a coordinate complexes. जैसा अभी ये मैं Cu2 प्लस की बात कर रहा हूँ, Cu2 प्लस अगर 4Cl माइनस से कंबाइन होगा, Cl माइनस क्या हो गए, क्लोराइड, विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. तो ये चारों Cl माइनस अपना पेयर Cu को डोनेट करेंगे एंड दे विल फॉर्म Cu, बराबर देखना, Cl 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 minus 2, that is CuCl4 minus 2, a compound tetrachlorocuprate 2 ions. Now this compound, in this compound, copper is forming a coordinate complex with the chloride ions. So chloride ions are the electron pair donors and these cations are electron pair acceptor. Clear है? And they are forming a कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स. देखो ये सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्लोराइड से आ रहे हैं, क्योंकि क्लोराइड के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक पेयर ही पूरा डोनेट करता है Cu2 प्लस को. 4 क्लोराइड है तो चारों डोनेट करेंगे. सो सिंपल कैटायन कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड. सेकेंड, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये भी बन सकते हैं लुईस एसिड. फॉर एग्जांपल BF3 जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. AlCl3 it can accept electron pair, it has 6 electron in the outermost shell. BeCl2 बट बेरिलियम तो इसके अंदर नहीं कर पाएगा. ओके, then you can have different other examples where the octet is incomplete, like FeCl3, it has 6 electron in the outermost shell. So the octet is incomplete, so they are capable of accepting electron pair. तो ये भी लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं. थर्ड, मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपांडेड ऑक्टेट. एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब ये हो गया कि ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बी ऑर्बिटल. फॉर एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ SnCl4, SiF4, then you can have SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, देन GeCl4, ये सब एक्सेट्रा. ये सब कंपाउंड क्या कर सकते हैं, अपने अंदर एक्स्ट्रा, SnCl4 लिखा है यहाँ पर, अपने अंदर एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड कैन हैव एक्सपांडेड ऑक्टेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल. एम्प्टी, वेकेंट, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये SnCl4 को बराबर देखना, आपको समझ में आएगा इसका एग्जांपल, क्यों ये लुईस एसिड है, व्हाई दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. नाउ SnCl4 की हम लोग बात करेंगे. इसका और सिंपल एग्जांपल लेता हूं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लेता हूं. सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में अगर आप सिलिकॉन की बात करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 14 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, देन 3s2 3p2 है. ओके, 14 एटॉमिक नंबर. अब जरा 3s2 3p2 की बात करते हैं, तो 3s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 होते हैं ऑर्बिटल, तो 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4. और 3d इसका पूरा एम्प्टी है, 1 2 3 4 5, 3d एम्प्टी है. अच्छा, जब एक सिलिकॉन 4 क्लोरीन से कंबाइन होता है तब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जहां पर से एक 3s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3p में आ जाएगा, जो आपने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखा है. ये इसका एक्साइटेड स्टेट हो गया, तो ये सिलिकॉन का एक्साइटेड स्टेट मैंने बना दिया. अब ये चारों मिक्स हो जाएंगे, रिकास्ट हो गए सिलिकॉन के, टू फॉर्म Si sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. आपको याद होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इसके अंदर चारों, तो मतलब यहां पर sp3 का कॉम्बिनेशन हो गया. अच्छा, इनसे कौन ओवरलैप करेगा, इनसे ओवरलैप करेगा क्लोराइड Cl का pz ऑर्बिटल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है. आपको याद होगा क्लोरीन के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है, 3p5 में 3px2 3py2 3pz1, तो क्लोरीन का 3pz या ओवरलैप करेगा, यहाँ एक क्लोरीन का 3pz ओवरलैप करेगा विद इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन, यहाँ एक क्लोरीन का ओवरलैप करेगा और यहाँ एक क्लोरीन का ओवरलैप करेगा विद ऑपोजिट स्पिन.
सो बेसिकली देखा जाए तो SiCl4 बनने में सिलिकॉन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज कर दिए हैं। तो अब मैं स्ट्रक्चर को प्रिसाइसली बनाऊंगा तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मतलब इन केस ऑफ SiCl4 Si is undergoing which hybridization? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाने के बाद वो बनाता है SiCl4 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जब आप SiCl4 को क्लोराइड सोल्यूशन में डालोगे, क्लोराइड मतलब Cl माइनस, ओके आई रब दिस आउट हियर, ये 3s 3p को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ 3d रखता हूँ इसका समझाने के लिए। जब आप क्लोराइड डालोगे तो सिलिकॉन बोलेगा मैंने अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए हैं आउटर मोस्ट शेल के, अब मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्लोराइड बोलेगा मेरे को तेरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं क्लोरीन नहीं हूं। क्लोरीन इज 17 2,8,7 बट मैं क्लोराइड हूं, क्लोराइड इज 2,8,8 2,8,8। तो जब दो क्लोराइड आयंस विद कंप्लीट ऑक्टेट अप्रोचेस सिलिकॉन, सिलिकॉन बोला मैं तुम्हारे साथ में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्लोराइड बोलेंगे हमारे को तेरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, वी हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू जस्ट गिव अस फ्री स्पेस। सिलिकॉन बोला मेरा d ऑर्बिटल खाली है, तो एक काम कर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दे, तू अपना पैर पूरा यहाँ रख दे इलेक्ट्रॉन, तो दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए क्लोराइड से। मतलब ये क्लोराइड यहाँ सिलिकॉन से अटैच हुआ, यहाँ सिलिकॉन से अटैच हुआ। तो अब इन्होंने, क्लोराइड ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के d ऑर्बिटल्स में, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट किए, करने की वजह से अब पूरा स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SiCl4 से SiCl4 में जब दो क्लोराइड आ जाएंगे अपने लोन पेयर्स लेके, तो इट विल कन्वर्ट इनटू sp3। देखो यहां पर सिलिकॉन क्या था, sp3 था। फिर इससे अपने दो ऑर्बिटल्स दिए ताकि क्लोराइड, दोनों क्लोराइड अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सके। सो नाउ दे कन्वर्ट इनटू SiCl, ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, बाकी ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो पहले से थे, एंड द चार्ज विल बी -2, मतलब ये बन गया SiCl6 -2 क्योंकि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने क्लोराइड से लिए। और अब सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 तो पहले था ही, अब उसने 2d दे दिया तो इट इज d2sp3 स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। तो यहां पर SiCl4 क्या बन गया, लेविस एसिड बन गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया क्लोराइड से टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। देखो ये दोनों बॉन्ड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जिसमें इसका हाइब्रिडेशन sp3 से d2sp3 हुआ। सो देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एक्सपांडेड ऑक्टेट, दे कैन हैव d ऑर्बिटल्स इन देम। अब यही जगह पे आप CCl4 नहीं ले सकते क्योंकि CCl4 में कार्बन के पास कोई d ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन का लिमिट क्या है, 1:2:2p, बस p से 2 सेकेंड ऑर्बिट के अंदर d नहीं आता। तो CCl4 CCl6 -2 नहीं बन सकेगा, इट कैन नॉट एक्ट एज अ लुईस एसिड। CCl4 लुईस एसिड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, बिकॉज CCl4 के अंदर कार्बन के पास में नो d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल होना जरूरी है फॉर अकोमोडेशन। बाकी ये सब बना सकते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपांडेड d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में अपने हाइब्रिडेशन चेंज कर सकते हैं। एंड द लास्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल इज ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल लाइक CO2, SO2, ये सब NO2, ये सब के सब जो है ना, ये एसिड्स की तरह बिहेव कर सकते हैं क्योंकि दे कैन केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों, क्योंकि यहां पर सपोज CO2 लिया है तो CO2 में आप बराबर देखोगे तो यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करता है जिसकी वजह से कार्बन पे डेफिशिएंसी आ सकती है। इसके लिए जब आप CO2 को पानी में डालोगे तो वाटर का लोन पेयर कार्बन ले लेगा और वो बनाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का बनना ही एक प्रूफ है कि CO2 का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स। अब SO2 को वाटर में डालोगे तो H2SO3 बनेगा, SO3 को वाटर में डालोगे तो H2SO4 बनेगा। दे आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज व्हाई दे आर एक्टिंग एज अ लेविस एसिड। सो लेविस एसिड सिंपल कटायंस हो सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकते हैं, एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जिनके पास में हैवी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है जिसके वजह से उनका सेंटर एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लेविस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर।
प्लीज कॉपी इट डाउन। अब मैं बात कर रहा हूं उसमें लेविस बेस की। अब लेविस बेस क्या है? लेविस बेस आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं तो उनमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं अनायंस का। मतलब इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लेविस बेस में आ सकता है अनायंस, सिंपल अनायंस, अनायंस विच हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम। मतलब तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो नेगेटिव चार्ज, जैसा हालाइट्स दे दिए, दे हैव लोन पेयर, दे कैन डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर देन यू कैन टेक NO2 माइनस। ये सारे के सारे जितने भी अनायनिक फॉर्म होगी ना, ये सब की सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो व्हेन इफ दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दे एक्ट एज व्हाट? लेविस बेस। तो सिंपल अनायंस ले लेंगे, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस हो गया, NO2 माइनस, NO3 माइनस हो जाएगा, ये सब के सब NO3 माइनस हो गया, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, SO4 माइनस 2 एक्सेट्रा। सो दीज आर लेविस बेस, सिंपल अनायन। दूसरा अनायन हो सकता है, दूसरा हो सकता है मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया मॉलिक्यूल, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लेविस बेस। वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर पे डोनेट कर सकता है, यस, लेविस बेस। ईथर, मतलब देखो कौन से मॉलिक्यूल को डिफाइन कर रहा है बेस में, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यस, लेविस बेस। लोन पेयर है इसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जो सब्सटेंस के पास में लोन पेयर्स है, अभी अमाइंस देख लो, अमाइंस इज RNH2, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो दो सब्सटेंस विच कैन डोनेट लोन पेयर्स, they can also act as Lewis base. Those substance anions donate lone pair act as Lewis base. Third, pi bond वाले compounds, pi bond वाले compounds भी पूरा pi bond donate कर सकते हैं। For example HC triple bond CH, CH2 double bond CH2। अब अगर आप इसका रिएक्शन देखोगे अल्कीन का, सबसे सिंपल रिएक्शन, जब आप HCl ऐड करते हो तो सबसे पहले H प्लस अटैक करता है कोई भी एक कार्बन पे, जिसपे उसको पाई बॉन्ड मिल जाता है टू फॉर्म CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, कार्बोकैटायन बनता है। फिर आगे Cl माइनस इसको अटैक करेगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप में अल्कीन ने अपना क्या डोनेट किया? पाई इलेक्ट्रॉन्स H प्लस को। सब्सटेंस विच डोनेट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लेविस बेस। तो ये भी लेविस बेस की तरह रिएक्शन में बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लेविस बेस। सो हमको क्या याद रखना है इसके अंदर कि सबसे पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दे कंबाइंस विद लेविस बेस टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दूसरा हमको ये याद रखना है कि ऑल लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस आर लेविस बेस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस आर लेविस बेस। क्यों? लॉरी ब्रॉन्स्टेड बोलता है कि बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। एक एग्जांपल ले लेता हूं, अमोनिया। अमोनिया H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बना सकता है, हाँ सर बना सकता है। तो अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वेरी गुड। तो अमोनिया इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। अच्छा, अमोनिया लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो लोन पेयर डोनेट करने वाला कौन होता है? लेविस बेस। तो अमोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेविस बेस। सो अमोनिया लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस भी है, लेविस बेस भी है। इसके लिए मैंने क्या लिखा? ऑल लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस आर लेविस बेस, बट ऑल एसिड्स, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड्स, बट बेस होते हैं। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। Okay guys, so this was the entire discussion of modern theory of RNS, Lorry Bronsted, Lewis theory. Make note of every point. I hope you understood this lecture. The next lecture will be based on strength of electrolytes and derivation will be included in that. Okay, till then, bye.